Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Prayers by Queen Kunti and Parikshit saved. Text number 36. Shrinvanti gayanti grinanti abhikshanaha smaranti nandanti tavehitam janaha ta eva pashyanti achirena tavakam bhava pravaharo paramam padambhujam. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet which alone can stop the repetition of birth and death. Purport. The Supreme Lord, Sri Krishna, cannot be seen by our present conditional vision. In order to see Him, one has to change his present vision by developing a different condition of life, full of spontaneous love of Godhead. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see Him as the Supreme Personality of Godhead. Materialists like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see Him unless we have the necessary vision. This necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right sources. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualification, but they do not follow the principles of devotional service. Hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, the first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result. In this connection, there are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from His dealings with Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with the dealings with Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealings with His conjugal associates, the gopis as well as His married wives at Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature, each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an unauthorized hearing process take more interest in hearing about His dealing with gopis. Such an inclination indicates the lusty feeling of the hearer, and so a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. One must hear about the Lord from the very beginning, as in Srimad Bhagavatam or any other scripture, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not therefore consider that
his dealings with Pandavas are less important than his dealings with gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all material attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is hero in all circumstances, and hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and Puranas, etc., all made to revive our lost relationship with him. Hearing of all these scriptures is essential. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हिंदी बोलते हैं। तो महारानी कुंती भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। जब भगवान जा रहे हैं तो हस्तिनापुर से द्वारका, तब महारानी कुंती ये प्रार्थनाएं करती हैं और बड़ी सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। और प्रार्थनाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सार क्या है? वो कहती हैं कि मेरा इस संसार से सब जितने भी मेरे रिश्ते हैं, जितने संबंध हैं मेरे, वो सबको छुड़वा दीजिए, सबको काट दीजिए। सिर्फ आपसे मेरा संबंध रहना चाहिए। और उदाहरण भी देती हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, बहती हुई तेज गति से जाती है समुद्र को मिलने के लिए, ऐसे ही मेरा चेतना भी आप तक पहुंचना चाहिए और कुछ भी बीच में नहीं होना चाहिए। तो एक एक श्लोक श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती पे, इसीलिए जो बुक बना है कुंती महारानी की प्रार्थना है, वो प्रभुपाद के लेक्चर्स पे बना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये वाला जो श्लोक है, ये तो हम कह सकते हैं कि हर ग्रंथ का सार है ये, क्योंकि इसमें श्रवण की महिमा बताई गई है। यहाँ कहती हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देख हर्षित होते हैं, तो स्वयं श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो पहले श्रवणम होगा, फिर कीर्तनम होगा, फिर स्मरण होगा। ये ऑर्डर है। आप जब तक किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तो स्मरण कैसे करेंगे? अभी अगर मैं आपको बताऊंगा कि अफ्रीका में एक देश है कॉन्गो, वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उस पर स्मरण करो। अब आप न कॉन्गो जानते हैं बहुत लोग,
फिर वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं जानते होंगे, उस पर स्मरण कैसे करेंगे? पहले उसके बारे में सुनना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी जाने से पहले। इच्छा कैसे प्रकट होगी? जब अमेरिका के बारे में सुनोगे। इसीलिए तो एडवर्टीजमेंट होती है ना, अलग अलग देश के जो गवर्नमेंट है एडवर्टीजमेंट करती है कि हमारे देश में घूमने आइए, क्योंकि वो इच्छा जागृत कर रहे हैं। ये मार्केटिंग जितनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, ये सब इसी पे आधारित है। तो श्रवण कराते हैं कंपनी वाले आपसे, ये खरीदिए, बार बार श्रवण कराएंगे। फिर जब श्रवण हो रहा है तो आपका कीर्तन होगा, दूसरों को बताओगे कि ये खरीदो, स्मरण होगा। ऐसे ही भगवान कपिल देव कहते हैं ना अपनी माता देवहूति से कि हमारी आसक्ति तो है, ऐसा नहीं कि हमारी आसक्तियां नहीं, हमारी आसक्तियां हैं, लेकिन जब हमारी आसक्ति भौतिक व्यक्ति या भौतिक वस्तु के प्रति होती है तो क्या होता है, हम बंधन में फंसते हैं। और वही आसक्ति जब भौतिक व्यक्ति से हटा के साधु के पास लगाते हैं तो मोक्ष द्वारम उपावृतम, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो श्रवणम जो है वो किसका करना है? प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं जो आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। प्रहलाद महाराज ये नहीं बोलते श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। एक्चुअली जब भी बात होती है कीर्तन की तो मतलब कृष्ण कीर्तन, श्रवण मतलब कृष्ण का सुनो, और कुछ भी इस संसार में सुनने योग्य नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर हम लोग कैसे काम करेंगे संसार में? कुछ तो कर नहीं पाएंगे बिना सुने। आप सुनो, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल डीलिंग रखो, यहीं से सुना, काम किया, यहीं से निकाल दिया, उसको अंदर नहीं लेना है। हमारे इंद्रियां जो होती है 3 सेट में होती हैं। एक तो शरीर का कान है, उसके बाद स्थूल शरीर का कान ये है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर का कान है, मन का कान है। बोलते हैं ना अब बात हृदय को छू गई, वो अंदर का कान है। और फिर आत्मा है, उसकी अपनी इंद्रियां हैं। तो बाकी जो भौतिक चीजें हैं वो सिर्फ यहां तक रखो और निकाल दो। तो श्रवणम कीर्तनम और स्मरण में सबसे पहला क्या है? श्रवणम। और प्रभुपाद जी बल दिए श्रवणम। तो क्या है श्रवणम? क्यों करना चाहिए? क्या श्रवण करना चाहिए? किससे करना चाहिए? और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो श्रवण क्या है? श्रवण मतलब भगवान, ये तो वैसे आएगा। श्रवण टेक्निकली बोले तो सुनना। क्या सुनना चाहिए? लॉजिक लगाइए। कोई जैसे अखबार पढ़ते हैं लोग, अब अखबार आपके घर में आया, हाँ, आपने 6 बजे उठाया, 6 बजे मत उठाइए, जब तो पूरा कर लीजिए 16 माला, फिर अखबार उठाइए। भक्तों के घर में तो अखबार नहीं आते। मान ली आया, आपने अपना जप किया, मंगल आरती किया, गुरु पूजा किया, भागवतम पढ़ा, लेक्चर सुना, फिर अखबार को उठाया। अब आपने अखबार उठाया और पढ़ा और छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये अखबार अब आपके लिए पुराना हो गया, बासी हो गया, है ना। पहले तो उसमें लोग क्या करते थे, पुराने अखबार जमा करते थे, फिर उसमें पराठे पुड़ियाँ पैक करके टिफिन में बच्चों को दे देते थे या खुद लेके जाते थे। लेकिन आजकल तो जो इंक होती है अखबारों की, उसमें भी लेड होता है जो पॉइजनस होता है। इसीलिए केले का पत्ता यूज़ करें। बच्चा स्कूल में टिफिन खोलेगा तो केले का पत्ता निकलेगा, फ्रेश रहता है उसमें। तो अखबार आपने पढ़ लिया आधा घंटा 1 घंटा, अब वो पूरी खबर आपकी बासी हो गई। ऐसा नहीं होगा कि आप शाम को फिर पढ़ोगे, कहाँ है मेरा अखबार, फिर पढ़ूंगा। हो सकता है कभी कभी हो,
कुछ लोग इतने खाली होते हैं कि 2 रुपए का अखबार लेके 4 घंटा टाइम पास कर लेते हैं। एक एक लाइन, एक एक, उनको पंक्चुएशन मार्क तक पता है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये गलत है, ये सही है। वो पूरा अखबार, वो जो क्लासिफाइड्स होता है ना, किसी को मकान किराए से देना है, किसी को दुकान किराए से देना है, किसी की शादी करानी है, किसी का तलाक कराना है, सब पढ़ लेते वो। होता है, खाली बैठे क्या करेगा। लेकिन वो व्यक्ति भी जो 4 घंटा पूरा अखबार पढ़ा, आप उसको बोलो फिर से पढ़ो वही अखबार कल, मान लीजिए गलती से अखबार वाला एक दिन पुराना अखबार डाल के चला गया, आप तो उसके ऊपर केस कर दोगे। क्यों? पढ़ो, श्रवण है, पढ़ना भी श्रवण है आंखों से, ये क्यों नहीं सुनते हो? कोई व्यक्ति आपको खबर सुनाता है कि कल इंडोनेशिया में एक फ्लाइट क्रैश कर गया और 62 लोग का मृत्यु हो गई। अब ये कल की खबर है, तो अभी मैंने आपको बता दी, अभी 5 मिनट बाद फिर बताऊंगा। आप बोलो पता है ना प्रभु जी, फिर 10 मिनट बाद फिर एक बार बताऊंगा। अरे कितनी बार बताओगे? फिर बताएंगे। अरे बार बार क्यों बता रहे हो? है? तो हम बार बार नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि ये जड़ पदार्थ है, ये जो श्रवण है ये जड़ वस्तु का हो रहा है, ये आध्यात्मिक नहीं है, चेतन नहीं है। पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम, फिर भी लोग फंसे हैं। संसार की बातों को सुनने में कितना हमको आनंद आता है, उसे पता पड़ता है हमारी चेतना क्या है। कल आपको सुनाई दिया कि आपके घर के बाजू में लेफ्ट साइड में जो है वहां पे ये हुआ, हाँ बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगले दिन घर के राइट साइड में कुछ हुआ, फिर उसको भी ध्यान से सुनते हैं, दोनों सेम है। ये सब भौतिक है। तो इससे आपका फायदा क्या हो रहा है? आप लॉजिक लगाइए, वो खबर जो आपने पढ़ ली है, जो सुन ली है, उसको फिर नहीं सुनना चाहते हो, मतलब वो क्या है? बट आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर है, जैसे भागवतम है, भगवद गीता है, आप भागवतम पढ़िए, यही श्लोक 1.8.36 अभी आपने सुना, क्लास भी सुन ली, इसको फिर पढ़िएगा, 2 घंटे बाद फिर पढ़िएगा, 4 घंटे बाद फिर पढ़िएगा, अगले दिन फिर पढ़िए, आपको नया नया रियलाइजेशन आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो गया। नारद मुनि बताते हैं ये वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है जो आपको बोर कर दे। जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि हमको अखबार निकालना है, तो किसी ने कहा अरे अखबार कितना, अखबार क्या निकालना है रोज, क्योंकि इतनी खबर कहाँ है। तो भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं ये कलकत्ता शहर इतना छोटा सा है, ये भारत में कलकत्ता इतना छोटा है, और ये भारत देश जो है इंडिया, मॉडर्न इंडिया, ये पूरी दुनिया में इतना छोटा है। और ये जो पृथ्वी है, ये तो भूमंडल में एक प्लैनेट है, और ये भूमंडल जैसे 14 भुवन है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, और उससे 4 गुना ज़्यादा आध्यात्मिक जगत है। जब एक कलकत्ता शहर की खबर देने के लिए 10-12 अखबार निकल सकते हैं, इतने मोटे मोटे, तो आध्यात्मिक जगत की खबर देने के लिए कितने अखबार चाहिए, सोचो। हमारे आचार्यों ने सोचा कि कितना लिखेंगे, ये गीता भागवत पढ़ो, इतना ही बहुत है। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 बुक्स आर सफिशिएंट, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, बस। हमारे आचार्य अंदर लिखना होता तो इतना लिख दिया होता, आपका घर भर जाता, सोने कहाँ जाते बाहर। इसीलिए बोले इतना पढ़ो। तो आध्यात्मिक श्रवण क्या है? आप देखिए प्रभुपाद जी क्यों कहे कि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों का, मेरी पुस्तकों का एक लाइन भी पढ़ेगा उसका उद्धार हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पोटेंसी है उसमें। एक गोली, अगर देखिए
किसी को गोली मारना हो सकता है किसी को छू के निकल जाए, घायल करेगा, मृत्यु नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे रख के एक फायर किया, खत्म। तो एक श्लोक, एक स्टेटमेंट भी अगर वो सही चेतना से अंदर गया तो आपका भौतिक संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं तो क्या श्रवण करना चाहिए जो आधे घंटे में बासी हो जाए, या फिर जो हमेशा के लिए, हमेशा मतलब अनंत काल तक वो तरोताजा रहे, आनंद आए आपको पढ़ने में। लोग बोलते हैं ये मेरी फेवरेट मूवी है। अच्छा, ये मूवी को तो मैं देखने के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, मैंने कम से कम 200 बार देखी होगी। बहुत अच्छी बात है, 200 बार कितने साल में देखी? 2-3 साल में देखी। अब उसको बैठाओ, उसको खाना पीना अरेंज करो, ऑफिस का छुट्टी है, उसको बोलो देखो मूवी, देखेगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको वो भाव जागृत हो जाएगा। जब उस मूवी के सॉन्ग्स बजेंगे तो वो भी लहराएगा। हाँ, जब एक्शन आएगा तो वो भी फॉर्म में आ जाएगा। ट्रेजेडी होगा, कॉमेडी होगा, वो पूरे भाव उसको पता है, फिर भी वो एंजॉय कर रहा है। तो अब क्या वो मूवी आध्यात्मिक है नेचर में? अभी पता पड़ जाएगा। जब मूवी खत्म हो तो उसको बोलिए बैठो, कहाँ जा रहा है? हाँ, बोले देख लिया ना? बोले नहीं, तो तुम्हारा फेवरेट मूवी है। फिर चालू करो, उसको खाना पीना ला के दो और फिर चालू करो, रिपीट उसी समय। अब क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भौतिक संसार में लगता है, इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आपने जो मूवी देखी, आपको अच्छी लगी, आपका आनंद इतना था, फिर मूवी देखोगे रिपीट, उसके बाद आनंद इतना होगा, फिर देखोगे रिपीट, आनंद इतना होगा, फिर इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, फिर एक समय आएगा सर दर्द हो जाएगा। ये मूवी अगले जन्म में ले आना, अभी इस जन्म में दिखाने का नहीं, सर दर्द हो जाएगा पूरा। लेकिन ये सिद्धांत, ये इकोनॉमिक्स का ये प्रिंसिपल आध्यात्मिक पे नहीं लगता है। आपको पता है हमारे एक सन्यासी हैं परम पूज्य प्रहलानंद महाराज, उन्होंने भगवत गीता कम से कम 170-180 बार पढ़ी है। उनकी उम्र तो 180 साल की नहीं है, इतना तो सबको पता है। इस्कॉन में आए मान लो 45 साल हो गए, उन्होंने 170-180 मतलब सार में 4 बार पढ़ ली। और सिर्फ गीता नहीं पढ़ते, उनका नियम है डेली 10 श्लोक गीता के, 5 या 8 श्लोक भागवतम के, 25 श्लोक चैतन्य चरितामृत के और 10 पेज प्रभुपाद लीलामृत का। ये फिक्स है उनका। तो 170-180 बार भगवत गीता पढ़ी है, भागवतम में इतना बार पढ़ा है। मैं एक भक्त को जानता हूं जो हर साल पूरा भागवतम, पूरा भगवत गीता, पूरा चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करते हैं, और पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और वही क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक है, ये चेतन है। एक और प्रभुपाद डिसाइपल है, वो कहते हैं कि शुरू में तो 5-6 बार मैंने गीता पढ़ी, 10 बार पढ़ी, समझ में नहीं आया गीता क्या है। और हम लोग एक बार पढ़ते हैं, प्रभु जी मैंने भगवत गीता पढ़ ली, अभी क्या करूं? मैं बोला भगवत धाम जाओ। प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता पढ़ने के बाद कृष्ण प्रेम मिल जाएगा आपको, आपको मिला तो निकलो भगवत धाम, वो तो नहीं मिला प्रभु जी, तो फिर पढ़ो। प्रभु जी जब खत्म, गीता खत्म, भागवत खत्म। अरे तुम क्यों नहीं खत्म हुआ अभी तक? सब खत्म हो गया, तुम क्यों नहीं खत्म हुआ? खत्म मतलब क्या है? अरे कुछ लोगों को देखोगे मुझे जल्दी जल्दी गीता खत्म करनी है, किधर जाना है? जाना किधर है? भागवत जल्दी जल्दी खत्म करना है, जाना किधर है? एक भक्त को मैंने देखा, वो ऐसा भागवतम उठा के और पढ़ रहा था, मैं भी बाजू में बैठा था तो पढ़ रहा था, मेरा एक पैराग्राफ नहीं हुआ, उसके 2 पेज हो गए। बोले अच्छा पहले से पढ़ लिया होगा। फिर मैंने एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा, इसके 2 पेज हो गए। बोले प्रभु जी क्या कर रहे हो? बोले दिस इज कॉल्ड स्किपिंग एंड स्किमिंग। मैं बोला मतलब? बोले सिर्फ उसमें मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ पूरे भागवतम, उससे समझ में आ जाता है। अच्छा, भागवतम जो है ना, कृष्ण समझने के लिए नहीं है, कृष्ण को तो कोई समझ ही नहीं सकता है। कृष्ण स्वयं आप कंफ्यूज हो जाते हैं अपने को देखते हैं तो। हाँ, और लीला है भगवान की, द्वारका में देख रहे हैं पिलर में अपनी छवि, ये कौन है इतना सुंदर व्यक्ति?
भगवान अपने आप को नहीं समझ सकते, हम क्या समझेंगे भगवान को? भगवान जो है, या भागवत तो अभिन्न है भगवान से, भगवान का नाम, इसको रिलिश करना है, अब्सॉर्ब करना है अपने आप को। हाँ, हरि नाम का एक एक शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी श्रवण है ना। हरि नाम का श्रवण करना है। अभी तो हम भागवत पे चल रहे हैं, चलो अभी स्क्रिप्चर्स पे चल रहे हैं। तो भागवतम के श्लोक को पढ़ना, उनके तात्पर्य को पढ़ना, अनुवाद को पढ़ना, शब्दार्थ को पढ़ना, उसको आराम से अब्सॉर्ब करना चाहिए। एक भक्त हैं, वो एक श्लोक है 1511, 1510, 1510, हाँ, पहले स्कंद का 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। उन्होंने 2 महीने तक उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। 2 महीने तक 2-2 घंटा रोज सिर्फ उसी श्लोक को पढ़ रहे थे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। अरे अमेजिंग, आप सोच सकते हो। बड़े सीनियर डिवोटी हमारे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उन्होंने अपने शिक्षा गुरु से पूछा कि प्रभु जी मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बोले क्यों बढ़ना है, बढ़ के करना क्या है, यही पढ़ना है। अरे भगवत धाम जाओगे तो भी तो ये लीला जो हो रही है वही सुनोगे ना। ऐसा तो नहीं आप भगवत धाम पहुंच गए और आप मान लीजिए वहाँ पे ग्वाल बाल हैं और कृष्ण के साथ गाय चराने चले गए, फिर आप बोलते हैं कृष्ण आज मैंने आपके साथ गाय चरा ली, अभी और आगे क्या। कृष्ण भी सोच रहे किधर आ गया, अरे मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं ही हूं। सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम, ये गोविंद का कोई आदि नहीं है, ये और आगे कहाँ जाएगा, यहीं पे रुकना है, आगे कुछ नहीं है। तो जल्दी जल्दी ये मत करिए, को समझिए एक एक स्टेटमेंट को। प्रभुपाद जी ने अपना जीवन दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे बुक्स माय पर्पस आर माय ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसीज। प्रभुपाद ने अपना जीवन दिया है सिर्फ ग्रंथ लिखने के लिए। एक भक्त बताते हैं ना, प्रभुपाद जी ने बताया था उनको कि कृष्ण ने प्रभुपाद से कहा कि आप जाइए भौतिक संसार में, पृथ्वी लोक पे। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, गंदी जगह है। नहीं नहीं आप जाओ, सिर्फ ग्रंथ लिख के आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा। तो प्रभुपाद आए ही ग्रंथ लिखने के लिए। रात भर जाग जाग के प्रभुपाद जी ने लिखा, सारे आचार्यों का कमेंट्री का निचोड़ है उसमें। तो वो भक्त प्रभुपाद डिसाइपल कह रहे थे 10 बार 8-10 बार गीता पढ़ी तो समझ में ही नहीं आया, उसके बाद 10-15 बार और पढ़ ली, तब इतना समझ में आया कि गीता जो प्रभुपाद के परपट है, वाह प्रभुपाद के परपट। अभी भी गीता समझ में नहीं आएगी। सोचिए आप 30, 40, 50 बार भगवत गीता पढ़ लो, शायद कुछ समझ में आ जाए। इतना समझ में आ जाएगा हाँ, कि प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है कितना एक्सप्लेनेशन क्लियर है। भगवत गीता को समझना इतना सा, हम बोलते हैं भगवत गीता हो गया, भागवतम हो गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भगवत गीता पढ़ते रहिए पूरा जीवन, भागवत मत पढ़िए। नहीं, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन पढ़िए। अब ये जो भक्त हैं ये इतने सालों से, इस्कॉन का कोई भी भक्त 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, कितने बार ग्रंथों को पढ़ लिए होंगे, कितने बार उन्हीं श्लोकों पे लेक्चर दे दिए, फिर भी वो उत्साह आ जाता है। कैसे होता है सोचिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर जो है, ये विषय जो है ये आध्यात्मिक है। तो श्रवण क्या है वो हमने देखा। क्या सुनना चाहिए, लॉजिक लगा लिया, आप खुद देख लीजिए क्या सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। और ये बड़ा प्रश्न है, क्यों सुनूं मैं ये भागवत, क्यों सुनूं गीता, क्यों सुनूं हरिनाम। क्योंकि सिर्फ ये शब्द है,
ये भागवत और गीता का और हरिनाम का ये शब्द ही है जो आपके कान से जाके सीधा हृदय पे जाके और वहाँ पे अनर्थों को ख़त्म करता है और कुछ नहीं करता, और कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ तक। भगवान कहते हैं ना गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, हमेशा मेरा जो है भजन करो, मतलब श्रवण कीर्तन करो। क्या होगा? मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। कैसे रास्ता दिखाएंगे प्रभु? कोई बोलेगा भगवान कैसे रास्ता दिखाएंगे हमको? तो भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वत। मैं अनुकंपार्थम, अपनी अनुकंपा से, अपनी कृपा से, अहम अज्ञानजं तमः, कि मैं जो अज्ञानता है ना आपके हृदय में जम गई है तमस की, उसको निकालूंगा। कैसे निकालेंगे प्रभु? ज्ञानदीपेन भास्वत। देखिए 2-3 बार अहम अहम बोलते हैं। तेषाम एवा अनुकंपार्थम, अनुकंपा मतलब भगवान की, अहम अज्ञानजं तमः, मैं क्लीनिंग करूंगा तुम्हारे हृदय का, नाश्यामि आत्म भावस्तो, मैं ही नष्ट करूंगा। कैसे करूंगा? ज्ञानदीपेन भास्वत। भगवान पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने हृदय का दरवाज़ा खोलना है। और ये शब्द, आध्यात्मिक शब्द जो गीता में है, भागवत में है, जो हरिनाम है, उसको अंदर जाने देना है बस। श्रवण का मतलब है ये अंदर का दरवाज़ा खोलना, चेतना का। आप ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, घर गृहस्थी का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको हृदय का दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। भौतिकवादी व्यक्तियों के सामने अगर आपने हृदय खोला तो मतलब खत्म हो गया, आपका चेतना वो खा जाएगा। भले भक्त के पास आके कुछ भी खोलो, अपने हृदय का कोई बात बोलो, लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं है, प्रभुपाद बोलते हैं नेवर ट्रस्ट नॉन डिवोटी, नेवर ट्रस्ट अ पर्सन हु इज नॉट अ डिवोटी। कोई भी व्यक्ति जो अभक्त है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब वो कोई भी हो, वो अभक्त नहीं है तो उस पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा हृदय जो है वो कभी नहीं खोलना चाहिए हमको भौतिक चीज़ों के लिए। क्यों? जैसे ही आप खोलोगे ऑलरेडी गंदगी है और गंदगी आके बैठ जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों के लिए हमें अपना हृदय को पूरा खोल देना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि मंदिर के बाहर चिन्ह रहता है कछुए का, जिसके पूरा सर और हाथ और पैर खुले हुए हैं। वो कछुआ जब बाहर रहता है तो अंदर कर लेता है, लेकिन जब मंदिर में पूरा खोल देता है। तो अपनी इंद्रियों को पूरा खोल दीजिए मंदिर में, अपनी चेतना को, अंदर की इंद्रियां, बाहर की इंद्रियां। लेकिन जब ऑफिस जा रहे हैं, जब दुकानदारी कर रहे हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं, भौतिकवादी लोगों के बीच में हैं, तब इनको समेट के रखिए। ये भी भगवान बताते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में सिद्ध प्रज्ञ वाले सेक्शन में बताते हैं। तो क्यों सुने हम? तो ये जब शब्द ध्वनि, और प्रभुपाद जी कहते हैं बोनाफाइड गुरु ढूंढिए, प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, ये जिम्मेदारी आपका है। लोग बोलते हैं हमारा गुरु ने तो हमको ठग दिया। नहीं, आपके गुरु ने आपको ठगा नहीं, आपने मौका दिया इस व्यक्ति को आपको ठगने के लिए, आपने मौका दिया। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर बाजार जा रहे हैं सोना खरीदने के लिए, चांदी खरीदने, हीरा मोती खरीदने के लिए, तो जिम्मेदारी आपकी है अच्छा वाला खरीद के लाओ। आप बाजार जाते हो टमाटर खरीदने के लिए, तो देखते हो ना सब टमाटर ठीक है, कीड़ा लगा है, हो ये तो कीड़ा लगा हुआ है, काला काला हो गया, कुछ कीड़े अंदर घूम रहे हैं, 2-4 और अंदर भी होंगे, कुछ और बेसमेंट में भी रह रहे होंगे, चलो ले चलो। तो गलती किसका है? गलती आपका है। आप सड़ा हुआ टमाटर लेके आओगे, घर में काटोगे तो पूरा ही सड़ा हुआ निकला। तो सब्जी वाले को क्यों गलत बोलना? उसने क्या कर दिया?
उसने तो नहीं बोला ये वाला लेके जाओ, वो तो बोल रहा है मैं दुकान लगा के बैठा हूं, जो चाहिए लेके जाओ, इतना रुपया दे दो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ये समझना कि प्रामाणिक गुरु कौन है। अब प्रामाणिक गुरु से सुनना है हमको, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक आचार्य गुरु परंपरा में। प्रामाणिक कौन होता है? जो गुरु परंपरा में है। सबसे पहले जो 4 परंपराओं में नहीं आता प्रामाणिक नहीं। अब कोई बोलेगा ठीक है 4 परंपराओं में कभी इधर का सुनना कभी उधर का सुनना, सब प्रामाणिक है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपके दांत में दर्द है, आप किडनी वाले के पास थोड़ी जाओगे। आपका दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक ही डॉक्टर के पास जाओगे। कभी किडनी वाले के पास चला गया, कभी हार्ट वाले के पास चला गया, ऐसा तो होता नहीं। तो वैसे ही गुरु भी, इसीलिए हमको एक लाइन पकड़नी चाहिए। तो अभी हमको क्या करना है? इस्कॉन प्रभुपाद जी है ना, पहले प्रभुपाद के ग्रंथ को। किसी ने प्रश्न पूछा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि महाराज अन्य आचार्यों की पुस्तकें कब पढ़ें? महाराज कहते हैं पहले प्रभुपाद की सारी पुस्तकें 7 बार पढ़ लीजिए। यानी भगवद गीता 7 बार, भागवतम 7 बार, चैतन्य चरितामृत 7 बार, भक्ति रसामृत सिंधु 7 बार, शिवोपदेश अमृत 7 बार, ये सारी पुस्तकें प्रभुपाद की 7 बार पढ़ लीजिए, फिर देखेंगे। तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। अब क्यों? इसमें ऑलरेडी आचार्यों की कमेंट्री है, भगवान के शब्द हैं। ये जो पावर है ना प्रभुपाद की बुक्स का, प्रभुपाद के लेक्चर्स का, ये जो आप सिर्फ अपना आपको बोलते हैं ना अटेंटिव हियरिंग क्या होता है, सबमिसिव हियरिंग, अटेंटिव हियरिंग, ऑरल रिसेप्शन, ये सब क्या होता है? सी ऑरल रिसेप्शन वर्ड बोला मतलब आपको अपने कानों से रिसीव करना है। ये नहीं बोला गया गुरु देंगे, गुरु तो देंगे लेकिन आप रिसीव नहीं करेगा तो क्या हो? गुरु तो सबको कृपा देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर सबको कहते थे विदेश में जाओ प्रचार करो, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ प्रभुपाद को कहा, लेकिन प्रभुपाद ने उसको स्वीकार किया, अपने दिल से स्वीकार किया और करके दिखाया। तो गुरु तो सबको कहते हैं। ऑरल रिसेप्शन कौन करेगा? सबमिसिव हियरिंग कहा गया है। सबमिसिव हियरिंग का मतलब क्या होता है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पहले गुरु ढूंढो प्रामाणिक, प्रणिपात, उनके चरणों पे सरेंडर करो, शरणागत हो जाओ, फिर उनकी सेवा करो। सेवा करने से आप सबमिसिव हो रहे हो, नम्र हो रहे हो। फिर उनसे प्रश्न पूछो। सेवा करने से सबको समझ में आ जाएगा, फिर भी कुछ पूछना है तो प्रश्न पूछो। जब शरणागत होगा जीव, हम जब शरणागति लेंगे गुरु के चरणों में और सेवा करेंगे और फिर जब प्रश्न पूछेंगे, तब गुरु का एक वाक्य हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए सफिशिएंट है। अभी नहीं हो रहा है, इतना पढ़ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है? क्योंकि सबमिसिव हियरिंग नहीं हो रहा है। ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, ध्यान पूर्वक सुनते नहीं, ध्यान पूर्वक पढ़ते नहीं, तो कैसे हृदय शुद्ध होगा? तो प्रयास कीजिए, जितना ध्यान है उतना लगा दीजिए। उससे क्या होगा? किसी भक्त ने कहा प्रभु जी 16 माला ध्यान पूर्वक नहीं होता है। 16 इंटू 108 1728 मंत्र होते हैं, तो पूरा नहीं, ठीक है, आधा होता है भाई। 16 माला में यानी 1728 मंत्रों में एक मंत्र पूरा ध्यान से सुन सकते हो। एक तो सुनो, क्योंकि एक मंत्र भी ध्यान से आज सुना तो क्या होगा? हृदय थोड़ा सा तो शुद्ध होगा। वो जो हृदय शुद्ध होगा, जब से हृदय शुद्ध होता है तो क्या करता है पता है आपको? जब हृदय अशुद्ध होता है, हमारी चेतना अशुद्ध होती है, तो अशुद्ध चीजों को अपनी तरफ खींचता है। कैसे होता है कि भक्त बनने से पहले, भक्ति में आने से पहले हमको मूवीज देखना और मूवी के गाने सुनना और प्रजल्प करना, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं ये सब छूटता जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब क्या है? इंद्रिय तृप्ति का भाव कम होता जाएगा, मतलब हृदय शुद्ध हो रहा है। अगर इंद्रिय तृप्ति का भाव बड़ा स्ट्रांग है, मतलब हृदय शुद्ध अभी हुआ नहीं है, अभी और भजन बाकी है,
कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा तो हृदय शुद्ध हुआ नहीं इतने साल से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ भक्ति छोड़ दूँ। अरे आपका पेट खराब है, आप डॉक्टर के पास गया, हाँ, दवाई लिया, ठीक नहीं हुआ, फिर दवाई लिया, फिर ठीक नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गया, ठीक नहीं हुआ, तो छोड़ देगा ऐसे ही? हाँ, प्रभु जी मरने तक अब मेरा पेट खराब ही रहेगा, अब कोई नहीं ठीक कर सकता। नहीं, आप जाओ हॉस्पिटल में जाओ, सोनोग्राफी कराओ, हाँ, और क्या क्या होता है वो करा दो, ट्रीटमेंट अच्छा कराओ। तो आपका अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, प्रभु जी मेरा तो हृदय शुद्ध नहीं हुआ, मेरे को भक्ति में अभी भी आनंद नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ सब छोड़ के। नहीं, आपको ज़्यादा डोज लेना है। 16 माला में काम नहीं हो रहा, 20 माला जप करो, 25 माला जप करो, ध्यानपूर्वक करो। तो क्या होगा, एक मंत्र भी ध्यान से सुनेंगे तो हृदय थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। तो ये शुद्ध हृदय क्या होगा, अगले दिन ये 2 मंत्रों को अपने पास खींचेगा। तो अगले दिन आप 2 मंत्र सुन पाओगे, फिर 3 मंत्र सुन पाओगे। ऐसा करते करते 2-3 सालों में आप पूरा 16 माला सुन पाओगे। जिस दिन आपने पूरा 16 माला सुन लिया, उस दिन आप किस स्तर पे पहुंच जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में किसी भी व्यक्ति पे आप ऐसे उंगली उठा लोगे, जब करो हरे कृष्णा 16 माला, वो चालू कर देगा। ऐसा शुद्धता आएगा आपके अंदर। इसीलिए तो प्योरिटी इज द फोर्स, प्रचार के लिए शुद्धता चाहिए। तो ये शुद्ध करता है हमको श्रवण, और ध्यान से सुनना चाहिए। आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, ये मत करो कि मुझे 20 श्लोक पढ़ रहे हैं, 50 श्लोक पढ़ने, हाँ, जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण को बड़ा तकलीफ होता है। कृष्ण सोच रहे हैं क्या बोल रहा है, ये बोला तो हरे कृष्णा, लेकिन सुनने में समझ में नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है। भगवान भी भगवान को तकलीफ मत दो ना, उनको सुनना पड़ता है क्या बोल रहा है। ये चालू तो किया था हरे कृष्णा से, ये बाद में क्या हो गया समझ में, कौन सी भाषा बोल रहा है। न चाइनीज है, न उर्दू है, न अंग्रेजी है, न हिंदी है, न गुजराती है, मराठी, कौन सी भाषा बोल रहा है। हाँ, तो भक्त लोग ऐसी भाषा बोलते, तो ये नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए। तो भगवान को सुनने में आनंद आया, हाँ मेरा नाम ले रहा है, शुद्ध हो रहा है। हाँ? तो क्यों करते हैं हम पता है, जल्दी जल्दी में रजोगुण, जल्दी 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 जल्दी, किधर जाना है जल्दी जल्दी करके। यहाँ पे भी भक्ति करना है, भगवत धाम जाके भी भक्ति करना है, यहाँ पे भी भगवान का नाम जप करना है, वहाँ पे भी नाम जप करना है, यहाँ पे भी गीता भागवत पढ़ना है, वहाँ पे भी पढ़ना, वहाँ सुनना है। ठीक है, वहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं होगी, सुनोगे, भगवान की लीलाओं देखोगे, होगा तो वही। सेंटर में, केंद्र में तो भगवान कृष्ण ही है, उनसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होगा गोलोक वृंदावन पहुंच गए, कृष्ण के पास पहुंच गए, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, प्रणाम किया, हरे कृष्णा कृष्ण जी, अब आगे कहाँ जाऊं, वही बात हो गई। हाँ, इतना जल्दी जल्दी भागेंगे और कहाँ जाएगा, वहीं रहना है। तो आप वैकुंठ जाओ या इस भौतिक संसार में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक नाम जप कर रहे हो, भागवत श्रवण कर रहे हो, पठन कर रहे हो, स्मरण कृष्ण का होगा, और इसका बेनिफिट क्या होगा पता है आपको। आप जिससे भी मिलोगे, अगर आपका चैंटिंग अच्छा हुआ है, अगर आपका रीडिंग अच्छा हुआ है, उस दिन आप जिससे मिलोगे सिर्फ कृष्ण कथा करोगे, मुंह से और कुछ निकलेगा नहीं, कृष्ण कथा ही निकलेगी, तो दूसरों का भी उद्धार करोगे। क्योंकि आपका हृदय शुद्ध हुआ तो स्वाभाविक है आप दूसरे का हृदय शुद्ध होगा, अपने आप होगा। आप देखिएगा कभी, अगर आपका 16 माला अच्छे से हो गया, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किया आपने, भागवतम पढ़ा, श्रवण किया, आप ऑफिस जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, स्वाभाविक एक फोर्स आएगा अंदर से आपको प्रीचिंग का। इसके पीछे लॉजिक है, श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर समझाते हैं। जैसे जैसे भक्त शुद्ध होता जाता है, कृष्ण जो हैं उसके हृदय में एक्टिवेट होते जाते हैं। एक्टिवेट मतलब वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं भगवान, और भगवान उसके पूरे सिस्टम को, उसके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। चलो भक्ति सिद्धांत जी बताते हैं, ये स्मरण होता है, तभी तो स्मरण होता है ना। और फिर भगवान उसके मुख से, उस भक्त के कंठ से होते हुए मुख से जबरदस्ती बाहर निकलते हैं, नाम के रूप में, कथा के रूप में, लीला के रूप में।
तो अगर आपका चैंटिंग अच्छा हुआ है, अगर आपका श्रवण अच्छा हुआ है, अपने आप कीर्तन होगा, ये गारंटी है। और सिर्फ कृष्ण कीर्तन निकलेगा आपसे। सामने वाला क्या सोच रहा है, वो कौन है, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कृष्ण कीर्तन करेगा। और क्योंकि श्रवण अच्छा हुआ है, वन हु हियर्स अटेंटिवली विल प्रीच विगरसली। श्रील भक्ति सिद्धांत जी कहते थे ना, आई हैव सीन दिस बॉय अभय, ही हियर्स वेरी अटेंटिवली, तो वन डे ही विल प्रीच विगरसली, बोल्डली। बोल्ड प्रीचर क्यों बने? क्योंकि श्रवण प्रभुपाद का सिखा रहे हैं आचार्य प्रभुपाद, तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं, सिखा रहे हैं हमको कि श्रवण करो। तो श्रवण करेंगे, अब कीर्तन अपने आप होगा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सुंदर बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं, इसी परपट में बड़ा परपट है कि अगर आप श्रवण करोगे तो बाकी अपने आप आएगा, क्योंकि श्रवण करोगे तो अपने आप बोलोगे, कीर्तन होगा। अरे कोई नहीं मिलेगा तो हरे कृष्ण कीर्तन गुनगुनाते रहोगे, और ये जब दोनों होता है श्रवण कीर्तन, तो अपने आप स्मरण कृष्ण का होगा, फिर आगे नवविधा भक्ति अपने आप हो जाएगी। श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। श्रवण का और थोड़ा सा आपको बताएंगे, श्रवण पे ही फोकस होगा, बाकी तो अपने आप आएगा। क्या सावधानी, किससे सुनना चाहिए तो आप समझ गए, प्रामाणिक भक्तों से। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना। जो भी भक्त नहीं है, प्रामाणिक भक्त नहीं है, जो भी परंपरा में नहीं है, जिसने परंपरा में गुरु को स्वीकार नहीं किया, उससे कभी मत सुनना, उससे कभी मत सुनना। वो जहर डाल देगा आपकी चेतना में। जैसे दूध बड़ा पोषण करने वाला होता है, लेकिन अगर सांप उसको डस के चला जाए तो दूध आपका शोषण कर देगा, मृत्यु दान दे देगा आपको। अब यहाँ पे बहुत सुंदर कुछ श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम में। हमें कुछ श्लोक, प्रभुपाद जी ने श्लोकों को बहुत जगह पे अच्छे से समझाया है। श्रवण के ऊपर पहले अध्याय में, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16 नंबर श्लोक से 21 नंबर श्लोक तक, जो प्रभुपाद जी अपने भजन में भी लिखते हैं, जो प्रभुपाद ने भजन लिखा था। और ये आप श्रवणम कीर्तनम वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे प्रभुपाद लिखे। तो क्या है? शुश्रूषोष दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निवेशनात्। कहते हैं, हे द्विजो, सुत गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। वासुदेव स्यान्महत् सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निवेश है। जो पुण्य भक्त है, जो भक्त शुद्ध हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा करना महान सेवा होती है। कौन है शुद्ध भक्त? प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य हैं। आप करिए प्रभुपाद जी का सेवा, उससे क्या होगा? ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। वासुदेव कथा रुचि, यही तो प्रभुपाद ने किया अमेरिका में, सेवा में लगा दिया सबको। 3 चीजें होती है ना, नाम में रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। इसमें सबसे पहला होता है वैष्णव सेवा। जब आप वैष्णव सेवा करते हैं तब नाम में रुचि आती है, श्रवण कीर्तन में रुचि आएगी। जब श्रवण कीर्तन में रुचि आएगी तो क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा और हृदय में करुणा आएगी, तब अब जाके जीव पे दया करोगे। तो वैष्णव सेवा, नाम गाने सदा रुचि, और फिर जीव दया, ये ऑर्डर है इसका। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं यहाँ पे? इससे क्या होगा? शृण्वतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। कहते हैं, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, और जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करने ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होती हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन
हृदयंतस्थ अभद्राणी विदुनोति सुरुत्सताम। विदुनोति, पूरा विदुनोति मतलब धो डालेंगे। ये श्रवण होता है ना, तो जितने अभद्र चीज़ें हैं उसका पूरा धुलाई हो जाता है। जैसे धोबी लोग धोते हैं ना, धोबी पछाड़ बोलते हैं, पूरा धुलाई हो जाता है अनर्थों का। लेकिन हमको श्रवण में रुचि लेनी पड़ेगी। और श्रवण में रुचि कैसी आएगी, स्टेप बाय स्टेप बता रहे। आप वैष्णव सेवा करो, श्रवण में रुचि आएगी। श्रवण में रुचि आने के बाद क्या होगा, अब आप श्रवण करने लगे हो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। नित्यम भागवत सेवया, फिर नित्य, ये हम लोग 7 दिन भागवत नहीं सुनते, हम लोग कथा करते हैं 7 दिन का, वो शाम को। मॉर्निंग में तो नित्यम भागवत सेवया चलता है। प्रभुपाद ने कहा मॉर्निंग में भागवतम, इवनिंग में भगवत गीता, चलता ही रहना चाहिए। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठा के उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट हो जाएगा अभद्र, फिर बोल रहे हैं अभद्र नष्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, भक्तिर्भवती नष्ट की, निष्ठ हो जाओगे भक्ति में, निष्ठा के स्तर को प्राप्त कर जाओगे। इधर उधर डगमगाओगे नहीं। ये पूरी दुनिया उलट पलट हो जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी भक्ति में स्थित रहोगे। फिर क्या होगा उससे, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तदा रजस्तमो भावो, हृदय में जो रजस और तम है वो खत्म हो जाएगा। क्या, अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म, क्योंकि निष्ठा हो गई ना। अब निष्ठ भाव में आ गए तो तमोगुण रजोगुण खत्म हो जाएगा, काम लोभ सब खत्म हो जाएगा। और क्या होगा हृदय में, सितम सत्वे प्रसिद्धति, अटल प्रेम भक्ति आपके हृदय में आके बैठ जाएगी। फिर क्या होगा उसके बाद, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार आप शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसो, मन से कैसे हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। कुछ आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। यदृच्छया लाभ संतुष्टो, गीता में भगवान कहते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्टो। एक्चुअली हम लोग को लगता है कि ये क्या है, इच्छा हमारी खत्म हो जाएगी तो आनंद कैसे आएगा। ये तो रहस्य है। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएगी ना भौतिक, उस दिन जो आनंद की प्राप्ति आप करोगे ना हृदय में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अनंत आनंद मिलेगा। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ये ब्रह्म सुख मिलेगा, ये कोई लोकल नहीं सुख मिलेगा आपको। हम लोग प्रायः इम्पोर्टेड चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, स्पेशली भारत के लोग। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन श्रीलंका, मेड इन एंटार्क्टिका, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, ये अच्छा लगता है। इम्पोर्टेड चीज़ें अच्छी लगती हैं हमको। तो अगर असली इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो है ब्रह्म शौक। वैकुंठ से भगवान लेके आए, प्रभुपाद जी वैकुंठ से लेके आए इसको इंपोर्ट करके। इससे बड़ा कोई इंपोर्टेंट चीज़ है नहीं है, यही रख लो। फिर क्या होगा, समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्त संघर्ष चाहते भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व आप समझ जाओगे, लेकिन कैसे, सेंटिमेंटली नहीं, भावुकता से नहीं, विज्ञानम, भगवत तत्व के विज्ञान को समझ जाओगे। और फिर क्या होगा, मुक्त संगस्य जायते, मुक्त हो जाओगे किससे, संग से। कौन से संग से, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से भी। उसके बाद क्या होगा, श्रवण का लास्ट तो बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहे। देखिए श्रवण से चालू किया, अब ये होगा, विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की जो गांठ है वो भिद जाती है, खत्म हो जाती है। संशय जो होते हैं सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है।
अब आप कर्म बंधन से, इस भव बंधन से पूरी तरह मुक्त हो गए। अब जीवन में कुछ नहीं है। अब आप भौतिक संसार में रहो, आध्यात्मिक संसार में रहो, एक गरीब देश में रहो या अमीर देश में रहो, हाँ? कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में अब वो आत्मा जागृत हो गई है। अब उसको कृष्ण के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। अब वो सारे संसार को कृष्णमय देखता है। और ये सब कैसे हुआ? ये सब श्रवणम से हुआ, वैष्णव सेवा और श्रवण से। तो इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप श्रवण भी कर रहे हो, वैष्णव सेवा भी कर रहे हो। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना भी सेवा है ना। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन को पालन कर रहे हैं। नाम जप करना भी सेवा है, क्योंकि गुरु ने कहा है जप करो, हम कर रहे हैं, तो गुरु का वचन का पालन कर रहे हैं। तो वैष्णव सेवा करो, नाम जप करो और श्रवण कीर्तन करते रहो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हरे कृष्ण।